Hello everyone, my name is Ash Kumar and today I am explaining my project which is Cypher SQL Studio. And in this video I start with my data flow diagram of my project SQL Studio. This project allows user to safely execute SQL queries and track their program. I will explain this in three levels: level 0, level 1 and level 2. Let's begin with level 0. In level 0 diagram, which is also known as context diagram, here we see the system as a single process. A user send a query, SQL query to the system. The system will process the that query and interact internally, and finally the system return either the result and or any error message back to the user. This level gives a high level overview of how the user interact with the system. Now let's move on the next level, which is level 1 DFD diagram. In this diagram, in this diagram, the flow start with the user click execute query and query submission. The front end send the SQL query to the backend. First, authentication is checked. The system verify the user using JWT authentication. SQL verification only safe in the third step. In the third step, SQL verification only safe select query are allowed to preview data loss. And in the fourth step, SQL execution, the validate query is execute in the PostgreSQL, because in this project I am using PostgreSQL as for checking the SQL commands. And in the fifth step, we receive the result in set back and display on the front end UI. This level show what major operations happen inside the system. Now let's move on the level 2 diagram, which is which is in which is working in detail. In this diagram, the authentication process include JWT verifications using middleware, and in second step the SQL validate module check for retrieve keywords like drop, delete, update, and PostgreSQL execute the select query and return rows. That the simple and same time At that same time, MongoDB is used to track user process such as attempt count, and query history. The front end update its status and display the result table. This level explain how each module communicate interact internally. And the conclusion of this complete DFD diagrams is to is to conclude Cypher SQL Studio ensure secure SQL execution, prevent harmful queries, track user process, and provide real-time result using a structured data flow diagram approach. Thank you for this. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के ऑथेंटिकेशन यूआई के साथ. इसमें हम लोग अपने मेरे
स्क्वेल साइफर स्क्वेल स्टूडियो के यूआई को देखेंगे। यहाँ हमने स्टार्टिंग किया है ऑथेंटिकेशन चेक के साथ। अगर यूजर लॉगिन है हमारे सिस्टम में तो ये पेज शो नहीं होगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो स्टार्ट होगा कि पहले प्लीज तुम लॉगिन करो। तो हम एक एग्जिस्टेंट ईमेल आईडी जो हमने मोंगोडीबी में, क्योंकि हमारे बेसिकली जितने भी असेसमेंट हैं, जितने यूजर्स के डिटेल है, वो सारे हम मोंगोडीबी में स्टोर कर रहे हैं, मोंगोडीबी डाटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। और मेन जो स्क्वायर के कमांड्स हैं वो हम लोग उसके लिए हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं कमांड्स को एंड एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा मोंगोडीबी का डाटाबेस है साइफर स्क्वेल स्टूडियो नाम से। इसमें हम लोगों ने 3 तरह के डाटाबेस बना रखे हैं, यूजर यूजर प्रोसेस, असेसमेंट। आगे चल के मैं इन पे डिटेल में आऊंगा, बट स्टार्टिंग करता हूँ मैं यूजर टेबल से। मोंगोडीबी में हम लोग टेबल नहीं कलेक्शंस बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने ईमेल और पासवर्ड, यही 2 चीज मैंने रखा है जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। या तो लॉगिन करने के बाद हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस तरह से है। इसमें जितने भी असेसमेंट्स होंगे उनके लेवल्स के साथ, जैसे कि यहाँ मीडियम लेवल है, इसमें 3 तरह के लेवल्स हमने मेंटेन रखे हुए हैं, मीडियम, हाई, इजी। यहाँ पे टाइटल, क्वेश्चन और लेवल क्वेश्चंस के वो हमें शो होते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। इनसाइड अगर हम लोग इसके अंदर जाएं किसी असेसमेंट को करने के लिए, तो यहाँ हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसमें स्टार्टिंग होता है टाइटल से, फिर चैलेंज, कंप्लीट, क्वेश्चन, लेवल और डिफॉल्ट टेबल जो हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल से आ रहा है। और अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट देखना है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग शो हिडन का ऑप्शन दे रखा है, तो ये देख सकता है यूजर कि हाँ किस तरह का एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेरी। और यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल लिया जिसमें 5 रोज पहले से डिफाइंड है एंड आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, ये 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो हमारा जो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है, एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी निकालना है। इसमें हमें नॉर्मली एक क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन हमें यहाँ पे ऊपर में है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर स्क्वेल में कोड लिखना है, जो कि यहाँ पे स्क्वेल एडिटर मैंने यूज किया है। बेसिकली स्क्वेल एडिटर जो है वो हमने यूज किया है अपने एग्जिस्टेंट तो यहाँ पे जो हमने एडिटर यूज किया वो मोनाको एडिटर है, जो नोड में पहले से नोड एक पैकेज npm का एक पैकेज है मोनाको एडिटर करके, तो मैंने उसी का एडिटर का यूज किया है, मोनाको एडिटर। ये हमें एक इंटरफेस देता है जिसमें हम लोग कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे हिडन का है, अगर मुझे इस क्वेश्चन का कुछ भी डिटेल नहीं, अगर मैं कोड नहीं सोच पा रहा हूँ तो मैं हिंट ले सकता हूँ जो हिडन है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कोड वो दिख जाएगा कंटेंट। यहाँ पे मुझे एक हिंट मिला है, थिंक अबाउट व्हाट कॉलम्स यू नीड एंड विच रो मैच द। अब हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं, कोड स्क्वेल के क्वेरीज लिखते हैं। तो यहाँ मैंने एक कमांड लिखा है, स्क्वेल का कमांड है जो कि हमें एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग निकाल के देगा। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ मुझे रिजल्ट मिलेंगे क्यूरी रिजल्ट के फॉर्म में, जो कि एक टेबल फॉर्म करता है। यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसके एवरेज सैलरी मुझे मिल गए। यहाँ
और नीचे में प्रोग्राम्स में यहाँ पे ये भी डिफाइंड हो रहे हैं कि किस टाइम में मैंने मतलब एक यूजर ने किस टाइम में कौन सा क्वेरी लिखा, उसमें कोई एरर था नहीं था, रो कितने रोज उसमें रिटर्न हुए। इसमें जिस तरह से इसने तीन रोज रिटर्न किए इसने, तो यहाँ पे 3 आया है, इसमें कोई एरर नहीं था इसलिए यहाँ पे नो एरर शो किया। इन केस अगर मैं यहाँ से ये 4 हटा के फिर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। आफ्टर एंटरिंग एग्जैक्ट कोड, इसने मुझे फिर सही कर दिया। और यहाँ पे सिंटेक्स एरर नाम का एक फील्ड ऐड हुआ पहले कि इस टाइम में मैंने एक गलत कोड डाला था जिसने एक एरर शो किया मुझे इस तरह का। तो ये सिंपल हमारा एक असेसमेंट कंप्लीट हुआ। आफ्टर कंप्लीटेशन यहाँ पे हम मेक कंप्लीट चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूरा हमें बता देगा कि हाँ कंप्लीट हो गया। कितने अटेम्प्ट, मैंने 3 अटेम्प्ट डाले थे, यहाँ कंप्लीट हो गया मेरा हमारा टास्क पूरा। और ये हम लोग अपना मोंगोडीबी के असेसमेंट तो इसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी डाला है, ये क्वेरी मैंने लिखी थी, कौन सा क्वेरी किस टाइम में आ रहा है, वो क्वेरी के साथ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहा हूँ। तो ये यूजर प्रोग्रेसिंग टेबल में हमारे जो क्वेरी जो यूजर डाल रहा है वो स्टोर हो रहा है और वहां से ही यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। ये था हमारा यूआई डिजाइन, यूआई हमारे प्रोजेक्ट का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपको कुछ कोड्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो इस वीडियो में अभी हम हमारे साइफर स्क्वेल स्टूडियो के कुछ कोड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने बैकएंड जो है वो एक्सप्रेस और नोड पे बनाया है, और डाटाबेस के लिए 2 डिफरेंट डाटाबेस का यूज किया है, एक मोंगोडीबी और दूसरा पोस्टग्रेसक्यूएल। मोंगोडीबी जो हमारे कंप्लीट जो फ्लो है यूजर्स के असेसमेंट जितने भी है वो सारे रिकॉर्ड जो होंगे वो मोंगोडीबी में स्टोर होंगे। और पोस्टग्रेसक्यूएल इसलिए हमने यूज किया ताकि जो हम क्वेरी लिखे हैं या फिर जितने भी टेबल्स एग्जांपल के तौर पे असेसमेंट एग्जांपल जितने भी हैं वो हमारे मोंगोडीबी में स्टोर होंगे। और हमने हिंट के लिए उसके लिए हमने जिमनाई का एपीआई की का यूज किया है। मोंगोडीबी का कनेक्शंस के कोड कुछ इस तरह से हैं, जिसमें कि हम लोगों ने नॉर्मली मोंगोडीबी का कनेक्शन डाल रखा है। साइफर स्कूल स्टूडियो नाम का एक डाटाबेस क्रिएट किया है, उसको कनेक्ट किया, और यहाँ पे सेम पोस्टग्रेसक्यूएल का भी जो होता है पोल क्रिएट करके किया सिंपल। डिफरेंट डाटाबेस हमने बनाए, 3 तरह के डाटाबेस बनाए हैं मोंगोडीबी में। एक है असेसमेंट, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट असेसमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं कॉलम वाइज की कॉलम नेम क्या है, डाटा टाइप क्या होंगे, सैंपल टेबल स्कीमा है, कॉलम स्कीमा है, सैंपल टेबल स्कीमा है। मीन्स मोंगोडीबी में तो हम लोग स्कीमा के थ्रू रिकमेंड करते, सो स्कीमा है, टेबल नेम, कॉलम। एंड यहाँ पे मेन जो असेसमेंट स्कीमा ये हमारा जा रहा है मोंगोडीबी में। ये 2 जो है उसके सब स्कीमास है जिसके थ्रू हम लोग उनको यूज करके स्टोर कर रहे हैं डाटा जेसन फॉर्मेट में। तो अब नेक्स्ट हम लोग मेन इसमें हमने मिडलवेयर का भी यूज किया, जो कि ये चेक करता है कि यूजर जो भी कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं और कितने क्वेरीज लिखे हैं यूजर ने, क्या लिखा है, कौन सा कमांड लिखा था, ये भी स्टोर कर रहे हैं। इसलिए हमने यूजर के ऑथेंटिकेशन पे फोकस किया है। मेनली जेडब्ल्यूटी का हम लोगों ने यूज किया है, और जेडब्ल्यूटी में पासवर्ड डिक्रिप्ट किया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोजेक्ट। दैट्स व्हाई वी यूज बिक्रिप्ट, जो कि हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा रैंडम कीज में।
यूजर प्रोग्रेस जिसमें कि हमारे हिस्ट्रीज स्टोर होंगे जेसन फॉर्मेट में, और यूजर के डिटेल, असेसमेंट के डिटेल जो कि फॉरेन टेबल फॉरेन की के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, रिलेशनल डाटा आरडीबीएस में फॉरेन की कहते हैं जिसे। और हमने मिडल वे भी बनाया जो कि ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है कि हाँ वो है कि यूजर एग्जिस्टेंट है, लॉगिन है। और इससे हम लोग नॉर्मली अपनी हम यूजर के जो डिटेल है, टोकन जो जनरेट हो रहा है WT टोकन, वो हम बेसिकली स्टोर कर रहे हैं अपने ब्राउजर के स्टोरेज में, जिसे हम सेशन स्टोर भी कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे टोकन, ईमेल और यूजर की आईडी हम लोग देख सकते हैं। हमारे लोकल स्टोरेज में हमने इसे स्टोर किया है। उसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब अगर हम, ये तो मेरा फ्रंट एंड बैक एंड का काम था जो मैंने आपको दिखाया। एपीआईज के जो वो स्टोर कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग यहाँ पे लोकल स्टोरेज में, फ्रंट एंड के लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं, बैक एंड के नहीं। मैं वहाँ बैक एंड का आपको दिखा रहा था गलती से। तो यहाँ एपीआई का मतलब फ्रंट एंड के लिए मैंने रिएक्ट का रिएक्ट देव यूज किया, रिएक्ट देव टूल का यूज किया है। इसमें मैंने एक फोल्डर बनाया है जो कि हमारे एपीआईज को कॉल करता है। जितने भी एपीआईज हैं, जो भी बैकएंड से एपीआईज आ रहा है, वो सारे यहाँ मैंने पहले एक फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाया है, और यहाँ से रेंडर करके मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हाँ वो एपीआई का जो यूआरएल है वो स्टोर करके यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं डाटास को, मतलब हैंडल रिस्पॉन्स चेक कर रहा है कि जो भी एपीआई हिट कर रहा है उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने एक बेसिकली 404 का एक रिस्पॉन्स का स्टेटस पे हम लोगों ने इफ कंडीशन लगाया है जो कि चेक करेगा, और अगर लॉगिन या ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं तो फिर वो रिडायरेक्ट कर देता है हमारे होम पेज, जो कि लॉगिन पेज होगा। लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देता है ये हमें। और गेट ऑथेंटिकेशन हेडर है ये हमारा। और रजिस्ट्रेशन फंक्शन, यहाँ से हमारे मेन फंक्शंस स्टार्ट होते हैं, एपीआई फंक्शंस। तो हमने एसिंक अवेट का यूज किया, और यहाँ लॉगिन फंक्शन, गेट असेसमेंट फंक्शंस, एग्जीक्यूट क्वेरी, जो क्वेरी यूजर डाल रहा है वो एग्जीक्यूट। यहाँ पे इस पेज पे लिखने का ये फायदा होता है कि जितने भी हम लोग क्वेरी है, जितने भी एपीआईज है, यहाँ पे हम एक जगह पे फंक्शंस बना दिए, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। बार बार हमें फंक्शंस लिखना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हमारा फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स टाइम जो होता है एपीआई का वो कम लगेंगे, और एक बार अगर स्टोर हो जाए तो फिर डेटा इजिली होता है। यहाँ पे हमने डिफरेंट कंपोनेंट रिएक्ट यूज कर रहे, तो कंपोनेंट वाइज मैंने पूरे के पूरे एप्लीकेशंस को ब्रेक किया है। और सारे कंपोनेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है जो कि अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो एसक्यूएल एडिटर का कंपोनेंट जिसमें हम लोग मोनाको का यूज कर रहे हैं, तो मोनाको का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एसक्यूएल एडिटर मोनाको का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुझे असेसमेंट मिला था वहाँ भी मेंशन था कि मोनाको के एडिटर का यूज करना है, तो मोनाको एडिटर का यूज कर रहे हैं। और डिजाइन के लिए हमने टेलविन सीएसएस का यूज किया है इसमें, और भी बहुत चीजें हमने यहाँ पे यूज किया है। हिंट्स के लिए हमने जेमिनी एपीआई की का यूज किया है।
और टाइप स्क्रिप्ट का इसलिए हमने यूज, यहाँ पे सब में आप देख रहे हैं TSX टाइप स्क्रिप्ट मैंने फोकस किया है, क्योंकि डाटाबेस सिक्योरिटी और डाटा डिफाइंड करना इज एक गुड प्रैक्टिस होता है, और ये हमारे प्रोजेक्ट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन और इजी टू। तो बेसिकली हम लोग जो टाइप स्क्रिप्ट मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज किया है इसलिए क्योंकि बग कंपाइल टाइम पे पकड़ लेगा ये जितने भी बग्स होंगे हमारे प्रोजेक्ट के, और बेटर कोड क्वालिटी होते हैं इसमें। हम लोग क्लीन टाइप क्लियर टाइप्स को क्लियर करते हैं, वेरिएबल्स के जितने भी टाइप होते हैं वो क्लियर करते हैं। एरर डिटेक्शन में बहुत इजी होता है। और बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का ही एक जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए भी इजी होता है। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को का एक टाइप सेफ बनाता है। जावास्क्रिप्ट को टाइप सेफ बनाने के लिए टाइप स्क्रिप्ट का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, जिससे बग कम होते हैं और लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशन मेंटेन करने और इजी हो जाता है। तो इसलिए हमने टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ किया है। और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे बैकएंड एपीआईज के थ्रू डाटा आ रहे हैं उसका हमने टाइप्स यहाँ पे असेसमेंट डॉट टीएस नाम की फाइल में स्टोर किया है। जितने भी टाइप्स हैं हमने यहाँ पे टाइप्स उस जो फील्ड्स आ रहे हैं हमारे रिस्पॉन्स के थ्रू, उस किस तरह के फील्ड हैं उनको डिटेल में हमने यहाँ पे अगर टेबल है, स्ट्रिंग है, कॉलम अगर है तो वो कॉलम नाम का एक इंटरफेस बनाया है। इंटरफेस बेसिकली एक फंक्शन टाइप ने डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, जो कि टाइप्स डिफाइन करेगा यहाँ से डायरेक्ट। यही था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। इसका मैंने रीडमी फाइल भी अपलोड कर दिया है गिटहब पे। दैट्स इट। आई होप प्रोजेक्ट आपको ठीक लगा हो। थैंक यू।